নমস্কার, গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম টু নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। ঠিক যেই মুহূর্তে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজেদের সংগঠনকে মজবুত করার চেষ্টা করছে এবং ঠিক যেই মুহূর্তেই সন্দেশখালির মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, মাইনরিটি অধ্যুষিত জায়গা নিয়ে উত্তপ্ত বাংলার রাজনৈতিক মহল, ঠিক সেই মুহূর্তেই মাইনরিটি ভোটকে পাখির চোখ করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মাইনরিটি সেলের নেতারা। আপনাদের জানিয়ে দিই, সাম্প্রতিককালেই রেহান আলম, যিনি এই গুঞ্জরিয়া অঞ্চল থেকে বিলং করেন, তিনি কিন্তু মাইনরিটি সেল তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি হয়েছেন এবং তারপরই ব্লকের যিনি নেতৃত্ব রয়েছেন, ব্লক প্রেসিডেন্ট আফাজউদ্দিন, মৌলানা আফাজউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে, সামি আক্তার এবং ইমাজউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে আজকে কিন্তু পাঁচুরেশিয়া জুনিয়র বেসিক স্কুলে একটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হলো। আমরা টেকনিক্যাল কারণ এবং সেই সঙ্গে সাংগঠনিক কারণের জন্য সেই সভা না দেখাতে পারলেও আমাদের কাছে যে তথ্য ছিল যে সেখানে প্রায় 100 লোক বিভিন্ন বুথ থেকে মাইনরিটি সম্প্রদায়ের, তারা কিন্তু আজকের এই সভাতে অংশগ্রহণ করে। কেন তাদের এই সভা, কী নিয়ে বৈঠক, কী ছিল তাদের আজকে আলোচনা বিষয়, আমরা ধীরে ধীরে শুনবো। জুড়ে থাকুন। এই মুহূর্তে ব্লক সভাপতি রয়েছেন মাইনরিটি সেলের মৌলানা আফাজউদ্দিন সাহেব। বললাম কিছুক্ষণ আগেই আপনাদের একটা সাংগঠনিক বৈঠক হলো, তো যেহেতু সাংগঠনিক বৈঠক সেটা তো আমরা ক্যামেরায় দেখাতে পারি না, কারণ সেটা আপনাদের সংগঠনের আলোচনা ছিল। কী নিয়ে বৈঠক ছিল মূলত আজকে আফাজউদ্দিন সাহেব? আমাদের আজকে গুঞ্জুরিয়া অঞ্চলের 19টা বুথের সব আমাদের যে বুথ প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি, তাদেরকে নিয়ে আমি একটা বৈঠক করলাম। আমাদের গুঞ্জুরিয়া অঞ্চল প্রেসিডেন্ট শামীম ভাইকে নিয়ে, আরও অনেক অন্য আশেপাশের যে অঞ্চল প্রেসিডেন্টরা ছিলেন, ওরাও এখানে উপস্থিত ছিলেন। বিগত ইলেকশনে আমাদের মাইনরিটি লোকের বিভাজন করে আমাদের ভোটটাকে বাটানোর চেষ্টা করেছিল, সেই খামিয়াজা আমরা ভুগেছি। এবার আমরা আগে থেকেই প্রত্যেকটি অঞ্চলে, আমাদের ইসলামপুর ব্লকের 13টি অঞ্চল, তার মধ্যে আমরা একটি অঞ্চল মিটিং করে ফেলেছি, তার নাম হচ্ছে পণ্ডিত পোটা 2। আজকে গুঞ্জুরিয়াতে আমরা বসেছিলাম যে বিগত দিনে, গতবার যে ইলেকশনে সুরসুরি দিয়ে আমাদের মাইনরিটি ভোটটাকে বাট করে 3 থেকে 4 হাজার ভোট আমাদের অঞ্চল থেকে আমরা বেশি ভোটে ওখানে পাঠাবো আর লিড করে দিব। তারপরে প্রত্যেকটি অঞ্চলে আমার ডেলি মিটিং আছে মাইনরিটি সেলের। আমি প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে, বুথ প্রেসিডেন্টকে নিয়ে মিটিং করব। ধন্যবাদ। আমরা কথা বলবো এই অঞ্চলের যিনি অঞ্চল সভাপতি আছেন তার সঙ্গে কথা বলবো। सामीम अख्तर রয়েছেন এই মুহূর্তে। सामीम भाई, आज कौन से गांव के लोग, खास करके कुछ बूथ के लोग, तकरीबन 300 आदमी को देखा गया कि वो लोग आए थे आज मीटिंग में, और आप लोगों का बात, सांगठनिक जो आलोचना है वो सुने। किस बूथ में से आया था और क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुंजरिया अंचल में 21 बूथ है। अच्छा, 21 बूथ में 19 बूथ का आदमी आया था। अच्छा, और हर बूथ में 10-10 करके आया था। अच्छा, एक बूथ में हम लोग बनाए हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, अच्छा, और प्लस उनके साथ 13 करके लगभग 200 या 250-300 के करीब आया था। अच्छा। तो उस बीच में तो आप आए नहीं, उस वक्त आप आने से तो पता ही चल जाता आपको कि मतलब मौजमा का। तो इसलिए कि हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब जो आए थे वो भी देखे मौजमा, वही हमको आदेश दिए थे कि आप वोट को बुलाइए, सामने इलेक्शन है, इलेक्शन में किस तरह से वोट को देना है। और हमारे माइनॉरिटी में, हमारा गुंजरिया अंचल है, ज़्यादातर माइनॉरिटी का वोट है। पिछले बार मतलब बढ़ गया था वोट, इस बार बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम सब बूथ प्रेसिडेंट और बूथ के वर्कर को बुलाए थे। बुलाने के बाद सबको हम वादा किया कि नहीं, इस बार हम लोग का वोट हमारे पार्टी के जो भी कैंडिडेट आएंगे इंशाल्लाह सबको उनको वोट दे करके, हमारे गुंजरिया अंचल में अगर 11,000 वोट कास्ट हुआ तो 10,000 वोट एकदम मिलेगा ही। एक सवाल आपसे समझ में, जी बोलिए। पिछले बार यहाँ जैसे देखा गया था लोकसभा इलेक्शन से, अगर मतलब इसके मद्देनजर बात करें तो मोहम्मद सलीम माइनॉरिटी के थे, और यहाँ आपका कुछ लोग जो हैं बीजेपी के लोग जो है व्यवस्थी को हिंदू वोट बल्कि उसमें चले गए, और यहाँ से कन्हैयालाल अग्रवाल जी जो कि इस्लामपुर पौरसभा के चेयरमैन भी हैं और आपके जो मदर पार्टी हैं उनके जिला सदर भी हैं,
तो वोट बंटवारा हो गया था, तकरीबन 4.5 लाख वोट मिला था तृणमूल कांग्रेस को, और देवश्री चौधरी को 5 लाख से थोड़ा ज़्यादा, और सलीम साहब को एक 1.25 लाख जैसा वोट मिला था। तो यह 1.25 लाख वोट अगर आपका स्विच ओवर हो जाता कन्हैयालाल अग्रवाल की तरफ, तो हंसते खेलते हुए आपके तृणमूल के जो उम्मीदवार थे तृणमूल कांग्रेस के, वो जीत जाते। इस बार आप लोग इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? आप लोग का ये अंदेशा है अभी तक कि माइनॉरिटी वोट दूसरी तरफ फिर बंटवारा हो जाएगा? तो हम लोग तो पिछले बार तो हम लोग ठोकर खा चुके हैं, कि इस बार हम लोग ठोकर नहीं खाने के लिए हमारे जिला प्रेसिडेंट, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, खास करके हमारे गुंजिरा अंचल में वोट उस बार भी लीड दिए थे हम लोग टीएमसी में। अच्छा। लेकिन कुछ वोट हमको कन्फ्यूज कर दिया था, इसलिए कि मुसलमान है सलीम साहब वोट दो। ये आरएसएस के कुछ लोग जो हमारे मुसलमान को, जो टोटो वाले और कुछ वाले को अगर जा रहे थे तो बोल रहे थे कि नहीं सलीम साहब अच्छा है, उनको वोट दे दो। अच्छा। हाँ, उसको हम लोग भी वोट दे रहे हैं, कन्फ्यूज करके मुसलमानों का वोट बंटवारा कर दिया वो लोग। तो इस बार हम लोग इसलिए बैठे हैं कि सबको आगाह कर रहे हैं कि अगर कोई बोले कि ये मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसको वोट देना नहीं है, हमारे टीएमसी कैंडिडेट को वोट देना है, जो हमारे कैंडिडेट आएंगे उनको वोट देना है। और इस बार वोट बंटवारा नहीं होना चाहिए, हर बूथ में हम लोग यही बस, और आने वाले जो इलेक्शन होगा उसमें भी हम लोग मतलब आगे बढ़ के काम करेंगे। पंडितपुरा 2 में हुआ, आज गुंजरिया अंचल में हुआ, खास करके माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाके में आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगाते हैं कि माइनॉरिटी के वोट, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख, नेटवर्क? हाँ, एक सवाल और भी आपसे पूछना चाहेंगे, नेटवर्क इशू था थोड़ा। बात है कि इस इलाके में देखते हैं कुछ निचले वर्ग के हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी माइनॉरिटी आपका सेक्शन में आता है, या कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को भड़कावा, जैसे कि समीम भाई बोले कि भड़कावा दे रहा है कि ये आपके कम्युनिटी का आदमी है, इसको वोट देना चाहिए। इस बार तृणमूल के उम्मीदवार जो कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, रहेगा, हम लोग का वोट देंगे, चाहे कैंडिडेट जो भी हो, चाहे वो हिंदू कैंडिडेट हो, और हम लोग को बस माइनॉरिटी का वोट एक तरफा होकर के हम लोग को वोट देना है, ये हम लोगों का एकदम। गुंजरिया अंचल में भी इस बार आप लोग? इंशाअल्लाह पूरा उम्मीद है, गुंजरिया अंचल में हम लोग 3 से 4 हजार वोट लीड देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे यहाँ असलम परवेज है, और प्रोग्राम हुआ, मैं पंडितपुरा 2 का माइनॉरिटी अंचल प्रेसिडेंट हूँ। मुझे बुलाया गया था जी, तो मैंने यहाँ की देखा कि हर बूथ से, हर पूरी बूथ को बुलाया गया था अंचल के जी, तो बहुत शानदार मीटिंग, प्राय 300 प्लस आदमी थे। तो एक ही बात यहाँ पे हुई कि जो सामने लोकसभा निर्वाचन, इस निर्वाचन में गुज़श्ता साल हम लोगों ने जो गलती की थी, आज हम लोग उसी बात को माइनॉरिटी के जब मैसेज देना चाहते थे तो आदमी कॉन्शियस हुए, हम लोग बात को निकाल रहे हैं तो अपने से आदमी को लगा हाँ ठीक बात है, हम लोग को ये गलती करना नहीं है। सिर्फ माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि मुसलमान नहीं, साथ साथ जो इसके साथ आदिवासी है और जो माइनॉरिटी के हैं, सिख ईसाई है, उन लोगों को भी हम ये मैसेज पहुंचाएंगे, जैसे वो लोग भी समझते हैं कि उनको डिप्राइव किया जा रहा है। क्योंकि जबकि आप एक चीज़ जो पहले ही बात है कि जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओहदे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक संसद भवन उद्बोधन होता है, उसको बुलाया नहीं जाता है, तो उसके साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये मैसेज हर आदिवासी को हम लोगों को पहुंचाना है कि झारखंड में आपको ये सोरेन, हेमंत सोरेन, उसको भी डिप्राइव, आदिवासी मुख्यमंत्री, उनको भी डिप्राइव बाई प्रेशर के हमको वोट दो नहीं, उसके बाद पे बीजेपी का ये चीज़ नहीं देख करके वो बेचारे को आज जेल में दिया गया। तो हमारे यही लक्ष्य होगा कि गुज़श्ता लोकसभा में हमने जो गलती की थी, आज हम लोग माइनॉरिटी की वजह से हर अंचल में हम लोग मीटिंग किए हैं। अपना पंडितपुरा 2 में 3 तारीख को मीटिंग हुई थी, आज गुंजिरिया में कर रहे हैं। पूरे 13 अंचल में हम लोग हफ्ता 10 दिन के अंदर में मुकम्मल करके एक ही मेरा मैसेज होगा कि यहाँ के तृणमूल का कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हम लोग को जिताना है, और वो गलतफहमी में हमको नहीं पड़ना है। चाहे हमारा कोई मुस्लिम कैंडिडेट को किसी भी दल से आ जाए, हम लोग टीएमसी को पहचानते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का देन है आज जो इतना फैसिलिटी। मैं 2-4 बात आपके माध्यम से मैं पेश करना चाहता हूं कि आज अगर हमारे घर में एक बच्चा क्लास 9-10 में पढ़ता है, उनको साइकिल देता है। जब वो एक लड़की अगर पढ़ती है उसको साइकिल देता है। जब वो क्लास 8 से वो 14 साल की हो जाती है उसको कन्याश्री मिलता है। फिर उसकी जब शादी होती है 20 साल की हो जाती है उसको रूपश्री मिलती है। तो इसके बाद वो अगर अच्छे नंबर से हायर सेकेंडरी पास करती है उसको फिर 10,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलता है। जब उसी फैमिली में एक आदमी का प्लस 60 बच्चा हो जाता है तो उनको आपको ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है। इसके यही नहीं, उस फैमिली में अगर 5 महिला 25 प्लस है तो उनको आज 500 पहले आज 1,000 करके ममता दीदी ने उसको दिया गया है। सब मिला के देखें तो यही एक सरकार है 1947 से बाद, यही एक सरकार है जो हम गरीब किसान मजदूरों के लिए सोचता है।
आज तक कोई नहीं सोचा। इसलिए मेरा ये आपके माध्यम से ये मैसेज होगा, हर माइनॉरिटी को हमको पूरा एकदम अलर्ट रहना है कि हम लोग को गलत फहमी में नहीं पड़ना है। मोदी के भूल जो हम लोग को भूल समझते हैं, लोग तो सोचते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो लोग सोचा कि मेरे खाते में 15 लाख देगा। आज दाल बिक रहा है 38 रुपया किलो, 14 से पहले तो शायद 10 रुपया किलो करेगा। डीजल बिक रहा है 50 लीटर, तो लोग सोच रहा था कि 25 रुपया होगा। इसी अच्छे दिन के हवा में उनको जिताया था। लेकिन जब 14 के बाद 19 का वोट आया, देखा कि हम तो कुछ किया नहीं, तो लास्ट में किया कि एक फुलवामा नाटक किया, जो एक नाटक था। फुलवामा ये एक अटैक नहीं था, एक नाटक था वोट जीतने के लिए। फिर उसको कर दिया। अब उसके करने के बाद उसके पास तो कोई है नहीं। उसने सोचा कि मैंने तो गैस सिलेंडर देने का वादा किया, आज तो मैं 1050 का गैस सिलेंडर ले रहा हूं, मैंने तो वादा किया कि गैस सिलेंडर फ्री कर दूंगा। तो इसी को सोच के एक नाटक किया, जो राम मंदिर, हमको आस्था, हम मुसलमान है, अपने मजहब से प्यार है, हिंदू भाई को हिंदू मंदिर से प्यार है। लेकिन अभी राम मंदिर पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसको उद्घाटन कर दिया, यही दिखाने के लिए कि देखो मैंने एक राम मंदिर कर दिया। लेकिन तो राम मंदिर का काम मैंने देखा है, हिंदू धर्म में मैंने बैठ के मैंने सुना है कि हम लोग जब किसी मस्जिद को माइनॉरिटी करते हैं तो कुछ अच्छे पीर को लाते हैं। जब एक मंदिर का उद्घाटन होगा, किसी ब्राह्मण होगा, अच्छे रंगे का जो आचार्य होते होगा। मैंने ये पहली बार सुना कि देश के 15 मंदिर राम मंदिर को उद्घाटन करता है, वो पवित्र जगह है। ऐसा जब किया तो फिर उसको द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, तो ये माइनॉरिटी के साथ डिप्राइव है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि सावधान हो जाओ। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक दो लफ्जों में आपको कहता हूँ, लोग आज हिंदुस्तान में तरस रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फिर से आए तेरी सरकार, ना नारे बाबा ना बाबा, पूरे भारत में है हाहाकार, ना नारे बाबा ना बाबा, काला धन तो वापस ना लाए, ऊपर से बैंक को डुबाए, तू सबका देगा भूखा मार, ना ना रे बाबा ना बाबा, चीन हमारी जमीन दबाए, नेपाल भी हमें आंख दिखाए, पाकिस्तानी सेना घुसकर हमें मारे, तू कहता है मैं हूँ चौकीदार, ना ना रे बाबा ना बाबा, फिर से आए मोदी सरकार, ना ना रे बाबा ना बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं इस वक्त माइनॉरिटी सेल के नेतृत्व जो है वो लोग बैठे थे। गायसलवान से भूतपूर्व जो अंचल प्रेसिडेंट है मदर के, और साथ ही साथ वहाँ के भूतपूर्व मेंबर जनाब इमाजुद्दीन साहब है, उनका भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो 2 अंचल में हो गया इमाद साहब, अब आपका गायसल का बारी है। और गायसल में हम लोग का अभी तक नहीं हुआ है। आज जो हम आए इनवाइट के हैसियत में आए हैं, हमारे अफाजुद्दीन भाई और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट निरान साहब का बहुत मेहरबानी है। हमें दावत दिया कि नहीं, आपका गायसलवान में आपको लेना ज़रूरी है, आप आगे बढ़िए और आपको लेना है और अंचल को जो है शक्तिशाली करना है। तो मैंने इन लोगों से वादा किया कि ठीक है, मैं तो ऐसे ही हूँ, लेकिन मैं माइनॉरिटी में जाकर के जो है और भी जितने भी जो भूल भ्रांति है इसको सुधार करके मैं लाऊंगा। और इंशाअल्लाह मैं गायसलवान के बारे दावा के साथ कहता हूँ 80 से 90% मैं अपना वोट दिलाऊंगा। इसी को बोलकर मैं अपना बयान शेष करता हूँ। अलीगंज से युवा नेता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आज अलीगंज के देखते हैं कि लोग खास करके गुंजरा जीपी के मतलब इस मीटिंग में आ गए हैं, माइनॉरिटी की मीटिंग में। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? माइनॉरिटी में आप लोग शामिल हैं? जी, माइनॉरिटी में शामिल हैं, बहुत खुशी की बात है। और हम लोग का सबसे पहले बधाई हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, उसके बाद हम लोग का जिला सभापति साहब का बहुत बहुत बधाई, जो हम लोग को यहाँ पे आमंत्रित किया है और जो एक्चुअली माइनॉरिटी क्या है उस चीज़ के बारे में बताए हैं। माइनॉरिटी के क्या फैसिलिटीज़ है, क्या फ़ायदे हैं वो बताए हैं। उसके बाद यही है जो सामने लोकसभा इलेक्शन है, उसमें हम लोग कैसे अपना रोल अदा करें, निभाएं और हम लोग अपना पार्टी को मजबूत करें और अपना कैंडिडेट को जिता के ले जाएं। इसी मुद्दे पे बातचीत हुई, हम लोग बात भी की और भी लोग आए हुए थे यहाँ पे। बहुत बढ़िया से हम लोग अपना जो सभा है, मीटिंग है, वो हम लोग कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम लोग करेंगे और हम लोग अपना पार्टी का दामन पकड़े रहेंगे, इंशाल्लाह मजबूत भी करेंगे। और हम लोग का जो भी कैंडिडेट होगा इस बार लोकसभा इलेक्शन का, उसमें हम लोग भरपूर साथ देंगे और इंशाल्लाह जिता के भी लेके आएंगे। यही उम्मीद के साथ हैं हम लोग यहाँ। और भी दिगर यहाँ मेंबर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं वो लोग। आप बोलो।
बोल रहे हैं कि आज यहाँ आप लोग का मीटिंग हुआ, तकरीबन सब बूथ से ही आदमी आए थे माइनॉरिटी के। हाँ, हमारा यहाँ का 22 बूथ में है, मतलब इसमें सब कोई आदमी आए थे, 200-300 के आसपास में आदमी आए थे। अगले 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त सलीम साहब और ममता दीदी के छाप में मतलब कुछ उलझन हो गया था कि हम मुस्लिम माइनॉरिटी मतलब वोट नहीं दिए थे, सलीम साहब को कुछ दे दिए थे मुसलमान बोल करके, तो इसी वजह से वोट में गड़बड़ी हो गया था। इस साल हम यही कहते हैं कि जो भी ममता दीदी का निशान होगा सब मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट हम ममता दीदी के छाप में देंगे और इससे ज़्यादा क्या है क्या मुसलमान इसी को वोट देंगे। शुक्रिया। आप देख सकते हैं गुंजरी अंचल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के तरफ से आज इस प्रोग्राम का शुरुआत किया गया था और तकरीबन कह सकते हैं कि 22 बूथ में से 19 बूथ का तक करीब से करीब कह सकते हैं कि 300 के करीब आदमी यहाँ आज मीटिंग में आए। रसिया जूनियर स्कूल में माइनॉरिटी का ये मीटिंग आखिर कैसे रंग लाता है इसके तरफ हमारा नजर रहेगा। आजान हो रहा है, इसीलिए हमें भी खामोशी एहतियात ना होगा। मैं जब्बार अली, चीफ रिपोर्टर न्यूज़ टुडे इंडिया, आपसे विदा लेता हूँ यह उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी कोई खास खबर लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दिस इज जब्बार अली signing off and meeting you in the next live with some important updates. Have a nice day.